हाय स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी पेज चैनल। आज हम देखेंगे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑन ऑटो ट्रांसफार्मर। ये पार्ट 4 है। अगर आपने पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा तो एक बार देख लो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांसफार्मर दैट डज नॉट प्रोवाइड इलेक्ट्रिक आइसोलेशन इज ए पावर ट्रांसफार्मर, बी ऑटो ट्रांसफार्मर, सी करंट ट्रांसफार्मर, डी पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, ऑटो ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट, इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर पावर फ्रॉम द प्राइमरी इज ट्रांसफर्ड टू द सेकेंडरी, ए इंडक्टिवली, बी कंडक्टिवली, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। In auto transformer, power is transferred from primary to secondary in both ways, inductively as well as conductively. Next, an auto transformer having transformation ratio 0.8 supplies a load of 10 kW. The power transferred inductively from the primary to secondary is A 10 kW, B 8 kW, C 2 kW, D 6 kW. इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 2 kW। देखिए यहाँ पे पावर ट्रांसफर्ड बाय इंडक्टिवली पूछा गया है, तो पावर ट्रांसफर्ड बाय इंडक्टिवली का फॉर्मूला होता है 1 माइनस के इंटू इनपुट पावर। यहाँ पे के मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, तो 1 माइनस के की वैल्यू हमें 0.8 दी गई है और इनपुट पावर है 10 किलोवाट। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 0.2 इंटू 10 दैट इज 2 किलोवाट। देखिए अगर यहाँ पे पावर ट्रांसफर्ड बाय कंडक्टिवली पूछा जाता तो उसका फॉर्मूला होता है K इंटू इनपुट पावर दैट इज 0.8 इंटू 10, 8 किलोवाट। तो अगर हमें पूछा जाता है कि पावर ट्रांसफर्ड बाय कंडक्टिवली तो इसका आंसर आ जाता 8 किलोवाट, लेकिन हमें यहाँ पे पूछा गया है कि पावर ट्रांसफर्ड बाय इंडक्टिवली, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 2 किलोवाट, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। Next, the auto transformer is generally employed in situation where voltage transformation ratio is A very low, B very high, C near unity, D unity. इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, near unity. Next, auto transformer can do the following: A step up voltage, B step down voltage, C both A and B, D none of the above. तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, both A and B, यानी कि ऑटो ट्रांसफार्मर कैन डू स्टेप अप और स्टेप डाउन द वोल्टेज। नेक्स्ट, द केवीए रेटिंग ऑफ आइसोलेशन ट्रांसफार्मर इंक्रीजेस व्हेन कनेक्टेड एज एन ऑटो ट्रांसफार्मर ड्यू टू A establishment of conductive link between the primary and secondary, B rise in terminal voltage, C increase in secondary current, D reduce the copper loss। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कंडक्टिव लिंक बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नेक्स्ट, which of the following is the main advantages of an auto transformer over a two winding transformer? A hysteresis losses are reduced, B saving in winding material, C copper losses are negligible, D eddy current losses are totally eliminated। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, saving in winding material। Next, auto transformer makes effective saving on copper and copper losses when its transformation ratio is A nearly equal to 1, B less than 1, C more than 1, D cannot be found। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, nearly equal to 1। Next, total windings present in a auto transformer are A1, B2, C3, D4। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, 1. In auto transformer, single winding act as a primary and secondary winding both. Next, which of the following is not true regarding the auto transformer compared to two winding transformer? A lower reactance, B lower losses, C higher exciting current, D better voltage regulation। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, higher exciting current, because in auto transformer reactance is less as compared to two winding transformer. Hence, in auto transformer, lower exciting current is required as compared to two winding transformer. Next, the efficiency of auto transformer as compared to two winding transformer is A less, B more, C equal,
डी नन ऑफ द अबव। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी मोर। In auto transformer, efficiency is more as compared to two winding transformer for same kVA rating. Next, 100 by 10 volt 50 VA double winding transformer is converted to 100 by 110 volt auto transformer. What will be the rating of auto transformer? A 500 VA, B 550 VA, C 100 VA, D 110 VA। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 550 VA। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम I2 निकालेंगे। I2 मतलब सेकेंडरी करंट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, दैट इज 50 डिवाइडेड बाय 10। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 5 एम्पियर। देखिए यहाँ पे ऑटो ट्रांसफार्मर विल आल्सो कैरी सेम रेटेड करंट इन सेकेंडरी, दैट्स व्हाई VA ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज V2 इंटू I2। V2 यहाँ पे है 1110 और I2 की वैल्यू हमने निकाली है 5 एम्पियर, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 550 VA, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फॉर अ 20 kVA ट्रांसफार्मर with turn ratio 0.4, what amount of total power is transferred conductively? A 8 kVA, B 12 kVA, C 10 kVA, D 50 kVA। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 8 kVA। देखिए यहाँ पे पावर ट्रांसफर्ड बाय कंडक्टिवली पूछी गई है, तो इसका फॉर्मूला होता है K इंटू इनपुट पावर। K की वैल्यू है 0.4 और इनपुट पावर है 20, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 8 kVA, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, a two winding transformer 220 by 110 volt 1.5 kVA is reconnected as 220 volt by 330 volt as an auto transformer. It is re-rated as A 1.45 kVA, B 4.25 kVA, C 1.48 kVA, D 4.4 kVA। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 4.4 kVA। देखिए यहाँ पे ट्रांसफार्मर का केवीए रेटिंग निकालने के लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, वो होता है KVA ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू 1/1 माइनस K इंटू KVA ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो देखिए यहाँ पे 1 माइनस K की वैल्यू होगी यहाँ पे 2/3 इंटू KVA ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है 1.5, तो यहाँ पे 1/0.333 इंटू 1.5, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 4.48, दैट इज ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर compared to the two winding transformer. A power rating is greater, B efficiency is low, C conductive isolation is not present, D voltage regulation is low। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी conductive isolation is not present। Next, if two winding step down transformer is converted into an auto transformer by using additive polarity, then A the kVA rating is reduced, B the kVA rating is increased, C the kVA rating remains constant, D none of the above। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी the kVA rating is increased। By additive polarity, overall voltage increased, due to this net kVA rating will increases। Next, the saving in copper achieved by converting a two winding transformer into an auto transformer is determined by A voltage transformation ratio, B load on the secondary, C magnetic quality of core material, D size of core material। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। देखिए यहाँ पे सेविंग ऑफ कॉपर इज इक्वल टू K इंटू वेट ऑफ कॉपर रिक्वायर्ड फॉर टू वाइंडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर। यहाँ पे K मतलब वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। नेक्स्ट, neglecting losses if the power transferred inductively is equal to the power transferred conductively in an auto transformer, then the transformation ratio of auto transformer is A1, B 0.5, C 0.8, D
2। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी 0.5। देखिए यहाँ पे पावर ट्रांसफर्ड बाय इंडक्टिवली का फॉर्मूला होता है 1 माइनस के इंटू इनपुट पावर, यहाँ पे के मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रेशो, एंड पावर ट्रांसफर्ड बाय कंडक्टिवली का फॉर्मूला होता है के इंटू इनपुट पावर। अगर यहाँ पे के इज इक्वल टू 0.5 पुट करते हैं तो पावर ट्रांसफर्ड बाय इंडक्टिवली इज इक्वल टू पावर ट्रांसफर्ड बाय कंडक्टिवली आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम रिलेशनशिप बिटवीन ऑटो ट्रांसफार्मर एंड टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर देखेंगे। ये सारे फॉर्मूले एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिए। फर्स्ट फॉर्मूला है ऑटो ट्रांसफार्मर कंडक्टर इज इक्वल टू 1 माइनस के इंटू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर कंडक्टर। नेक्स्ट है केवीए ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू केवीए ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर डिवाइडेड बाय 1 माइनस के, यहाँ पे के मतलब ट्रांसफॉर्मेशन रेशो। नेक्स्ट है ऑटो ट्रांसफार्मर लॉस इज इक्वल टू 1 माइनस के इंटू लॉस ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट है ऑटो ट्रांसफार्मर इम्पीडेंस इज इक्वल टू 1 माइनस के इंटू इम्पीडेंस ऑफ द टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। एंड लास्ट है ऑटो ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेशन इज इक्वल टू 1 माइनस के इंटू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेशन। सो थैंक यू फॉर योर टाइम। आज के लिए बस इतना ही। Please subscribe my channel and press the bell icon to get my new video updates.